the fifth lecture of our course Fundamentals of Programming. Let's start our lecture. In today's lecture we are going to cover two different topics. A very small topic initially, that is integer division versus float division, that what is the difference between when we divide integer numbers and when we divide the float numbers, or we are having the both type of numbers, then what will be the output. After that we are going to discuss the main topic of our today's lecture, that is decision making in C++ using if-else instructions. In if-else instructions we are going to cover simple if instructions, nested if instructions, if-else instruction versus conditional operator, nested if-else instruction, and finally the else-if ladder. Okay, let's start our lecture with the first topic, that is integer division versus float division. आपके पास जब डिवीजन के अंदर there are different possibilities of answers with respect to data type. आपके डेटा टाइप के रिस्पेक्टिव आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है कि आप जिन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं आपस में उनकी डेटा टाइप्स क्या हैं. इफ़ बोथ नंबर्स आर इंटीजर, अगर आपके दोनों नंबर्स दैट इज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होंगे, द आंसर विल बी ऑल्सो इंटीजर. ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास दोनों वैल्यूज़ इंटीजर हों और आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो. सो द आंसर विल ऑलवेज बी विदाउट पॉइंट्स. बट इफ़ एनी वन, अगर कोई भी एक वैल्यू जो है आपके पास पॉइंट्स में है, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, चाहे दोनों वैल्यूज़ हों, कोई एक भी अगर वैल्यू इन दोनों में से पॉइंट्स में है देन आपका आंसर पॉइंट्स में ही आएगा. एक्चुअली आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इनमें डेटा टाइप्स का डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द हाईएस्ट डेटा टाइप होता है. Okay, now come to the next topic, that is decision making in C++, how we can apply some decisions in the programming language or in our programs, because in the real life there are multiple decisions we have to take. For example, your admission criteria, your grading criteria, or any other formulas you want to apply some condition on it. So there can be different decisions we have to take for the flow of our program and as well as for the execution purpose. In the decision making we have in C++ different concepts or different instructions through which we can apply the decision making. One of the most famous one is the simple if or combination of if else and all the other formulations of if statement. We also have another statement, that is switch statement, which is also used for decision making. वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट में हमने क्या कहा था कि वी हैव टू ऑप्शंस. उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं विद रिस्पेक्ट टू सम कंडीशन. तो वो कंडीशन के रिस्पेक्टिव डिसीजन हो रहा होता है कि आपने किस लाइन को एग्जीक्यूट करना है और किस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना, किस वैल्यू को कंसीडर करना है और किस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना. वी ऑल्सो हैव अनदर डिसीजन मेकिंग statement, that is go to statement, and then finally we also have some loops which help us to repeat our statements. Actually the decision is, you can simply, being programmer can understand the decision making in terms of that at what step or at what value you want to decide which instruction needed to be executed. आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम का फ़्लो है, आप उस प्रोग्राम के फ़्लो में ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि किस टाइम पर कौन सी लाइंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कौन सी लाइंस स्किप हो जानी चाहिए. तो आप अपने प्रोग्राम को इस फ़्लो को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग दीज डिसीजन इंस्ट्रक्शंस. मींस आपने लिखना तो सारा कोड है, आपने सारी इंस्ट्रक्शन सारी पॉसिबिलिटीज़ के रिस्पेक्टिव कोड करना है. एक स्टूडेंट पास हो रहा है, आपने उसके लिए भी कोड लिखना है. एक स्टूडेंट फेल हो रहा है, आपने उसके लिए भी कोड लिखना है. एक स्टूडेंट का 1 GPA आ रहा है, उसके लिए भी कोड होगा. एक का 4 GPA आ रहा है, उसके लिए भी कोड होगा. आपने हर पॉसिबिलिटी के रिस्पेक्टिव कोड तो लिख दिया है, लेकिन आपके पास कौन सा कोड कब रन होना है, किस वैल्यू के टाइम पे कौन सी लाइंस एग्जीक्यूट होनी है, इस चीज़ को डिसीजन मेकिंग कहा गया है. डिसीजन मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली यू कैन कंसीडर एज कि आपके पास फॉर एग्जांपल यू केम फॉर एन एडमिशन टेस्ट में क्राइटेरिया था कि आपके अगर 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं यू कैन गेट द एडमिशन. अगर आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा है, ऑब्वियसली यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दी एक्सेप्टेंस थिंग. मीन्स कि आप
आपके मार्क्स 60% ज़्यादा हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में इंटरेस्ट है कि नेक्स्ट मुझे क्या फॉर्म्स फिल करने हैं, मुझे आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है एंड सो ऑन। बट अगर आपके पास मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल उससे कम है, आपके 60% से कम है, तो सिर्फ आप उसमें इंटरेस्टेड हैं कि ओके मेरे मार्क्स 60% से कम है, तो अब मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, मैं क्या दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, मैं वेटिंग लिस्ट में नहीं हूँ, मैं किस पोजीशन पे हूँ, तो आप सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप कहो कि आप पास हो और आप फिर भी इंटरेस्टेड हो कि फ़ेल वालों के साथ क्या हो रहा है, या आप वो भी डाटा देखना चाह रहे हो कि फ़ेल के केस में क्या हो रहा है। एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन डाटा। हमारे पास जो डाटा है हम उसके रिस्पेक्टिव अपना प्रोग्राम को चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम आगे फर्दर काम करे। तो आपकी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस किस यूज़र के लिए कैसे चलनी है, किस डाटा के रिस्पेक्टिव क्या एग्जीक्यूट होना है और क्या एग्जीक्यूट नहीं होना, ये सारा कुछ हम किसके थ्रू करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इन मल्टीपल डिफरेंट स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस decision statement is considered as if statement or if else statement. if statement को मैं personally बहुत ज़्यादा encourage करती हूँ because there is a quotation kind there that programming is nothing but if else, but a formulated or well designed if else. अगर आपको एक अच्छे तरीके से अपने if else को handle करना आता है, अपने प्रोग्राम में अप्लाई करना आता है, you can achieve much better thing, much good thing. आप एक बहुत अच्छे सिनेरियो को मॉडल कर सकते हैं यूजिंग ओनली द इफ़ स्टेटमेंट्स. सो इफ़ स्टेटमेंट्स आर वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इसका और एंड वेरी सिंपल एंड इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, इट इज़ नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफ़िकल्ट टू कोड. सिंपल सा प्रोग्राम है और आपने सिंपल इस प्रोग्राम के मुताबिक इसको अप्लाई करना है. In today's lecture we are going to cover only the if statement because there are many details of the if statements जिसको जानना ज़रूरी है. So let's start with the if statement. So the decision making with the if statement is that if statement may be implemented in different forms depending on the complexity of the conditions to be tested. The different forms are if instruction, nested if instruction, if else instruction versus conditional operator, nested if else instruction and finally the else if ladder. आपके पास if की different variations possible हैं. ये सारी की सारी different variations को मैंने list down किया हुआ है. यहाँ इन सारी variations को हम one by one go through करेंगे और ये सारी variations कहाँ कौन सी variation apply होनी है, that is depending on the complexity of the conditions needed to be tested. वो सारी कंडीशंस जो आप चेक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ एक कोई कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं, आपके लिए सिंपल एक इफ़ इंस्ट्रक्शन काफ़ी है. आप एक कंडीशन चेक होने के बाद दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन ट्रू होने के बाद दूसरी कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं, सो यू नीड सम नेस्टेड कंडीशंस. आप चाह रहे हैं कि आप एक कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं, ट्रू के केस में तो आप एक काम कर रहे थे, आप अदर देन कुछ काम करना चाहते हैं, सो यू नीड इफ़ एल्स इंस्ट्रक्शन. So you need different variations of these if instructions with respect to complexity of your conditions to be tested. So let's start with simple if instruction. Simple if instructions का आपके पास जो जनरल सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप किस तरीके से इसको कोड में लिखते हैं, यू राइट द सिंपल वर्ड इफ़. आई एम सॉरी फॉर दिस बट ये आपके पास ये आई को कैपिटल नहीं करेंगे. इफ़ इज़ अ कीवर्ड. इफ़ आपके पास एक कीवर्ड है, इस वजह से ये किसी वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता. इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है और एक ये स्पेसिफिक कंडीशन के लिए यूज़ किया जाएगा. इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स. स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या चीज़ मेंशन करेंगे, वो कंडीशन जिसके रिस्पेक्टिव आपने कोई डिसीजन लेना है, वो एक्सप्रेशन जो आपके डिसीजन का फाइनली डिफ़ाइन करेगा, उसका फाइनली आंसर देगा. लेट्स सपोज आई वाज टेकिंग दी एडमिशन टेस्ट डिसीजन, तो आपके एडमिशन का क्राइटेरिया जो है कि आप चेक कर रहे हैं कि आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं या नहीं हैं. तो ये चीज़ चेक करना कि 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर कंडीशन. सो इफ़ की ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा जाएगा, सम काइंड ऑफ कंडीशन. इन केस ऑफ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, आप जो भी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है और आप उसके ट्रू होने के केस में जो कुछ भी करवाना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम से, वो सारा का सारा कहाँ लिस्ट डाउन किया जाएगा, इसके फ़ौरन बाद इन करली ब्रैकेट्स के अंदर. आप इफ़ ब्लॉक के अंदर, इफ़ के बाद आपने एक्सप्रेशन लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, आप उसके बाद एक उसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे और इस ब्लॉक के दरम्यान में वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो इफ़ के साथ लिंक्ड हैं.
लिंक का क्या मतलब है कि अगर इफ़ ट्रू होता है तो इन स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है। और उसके बाद बाकी अदर स्टेटमेंट जो उसके आपके प्रोग्राम के बाहर होंगी, जो नॉर्मल फ्लो में चल रही हैं, जिनका इस इफ़ कंडीशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो भी इंस्ट्रक्शंस इस इफ़ की ब्रैकेट्स के अंदर, इस इफ़ की बॉडी के अंदर लिखी जाएंगी, सिर्फ वो लिंक होंगी किसके साथ, इस इफ़ की कंडीशन के साथ। अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है तो ये लिंक्ड वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास ये पूरा का पूरा ब्लॉक, ये सारी इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, चाहे वो एक इंस्ट्रक्शन होगी, 1000 इंस्ट्रक्शंस होंगी या मिलियन इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएंगी और आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आफ्टर द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस इफ इंस्ट्रक्शन। ओके, दिस वाज योर बेसिक इफ़ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कि आप अपने इफ़ इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे कैसे। इफ़ इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्टिव यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। फर्स्ट थिंग क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपकी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक इंस्ट्रक्शन भी लिंक हो सकती है और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को भी लिंक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंडीशन अप्लाई की और उस कंडीशन के बाद आपने सिर्फ एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी है। यू डोंट नीड टू डू मैनी थिंग्स आफ्टर दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टूडेंट को कह देना है कि सॉरी यू कैन अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक स्क्रीन पे ये लिखा हुआ दिखाना है बिकॉज उसके 60% से कम मार्क्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी और कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपने एक स्टेटमेंट लिख दी। अगर इफ़ के साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट लिंक्ड है तो आपको करली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इफ़ के बाद करली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर को समझ आ जाती है कि इस इफ़ के साथ सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टेटमेंट लिंक है, इससे ज़्यादा इसके बाद अब कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो इसी स्टेटमेंट के नीचे ही क्यों ना लिखी हुई हो, आपके फर्स्ट अलाइनमेंट पे क्यों ना हो, जिस भी जगह पे लिखी हुई होगी, इस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन इस इफ़ के साथ अब एसोसिएटेड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इफ़ के ब्लॉक के अंदर ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों, क्या आप कंडीशन ट्रू होने के केस में सिर्फ एक सी आउट नहीं करना चाहते बल्कि मल्टीपल सी आउट्स, मल्टीपल फार्मूलाज, मल्टीपल चीज़ें करवाना चाह रहे हैं, मल्टीपल फंक्शंस कॉल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेगी। करली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और उसके अंदर आप चाहें जितनी भी चाहें स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और एंड पे क्या करेंगे, अपनी करली ब्रैकेट्स को क्लोज़ कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट्स का ब्लॉक, ये पूरा का पूरा आपके पास इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लिंक हो जाएगा आपकी इफ़ की कंडीशन के साथ कि अगर इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन है वो ट्रू है तो ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप हो जाए और आपका प्रोग्राम इसके बाद जो भी लाइन लिखी हुई है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वो उसके ऊपर मूव कर जाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये इंस्ट्रक्शन ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास कंडीशन, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सप्रेशन नॉट कंडीशन। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे जो कुछ भी लिखा जाए वो एक कंडीशन ही हो, यहाँ पे आप एक पूरा फार्मूला भी लिख सकते हैं, एक पूरी कैलकुलेशन करके कोई एक फार्मूला भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। अगर यहाँ पे फार्मूला लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ 3 - 4, तो कंपाइलर को कैसे समझ आएगी कि ये आंसर ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका तो कोई आंसर होगा। जैसे 3 - 4 का क्या आंसर है, -1, सो -1 को वो क्या कंसीडर करे, या फिर मैंने इसके अंदर लिख दिया 20 + 30, क्या वैल्यू बन गई 50। अब 50 ट्रू है या फॉल्स है, तो उसका डिसीजन किस तरीके से आपके पास है कि ओनली 0 इज़ फॉल्स। इफ़ की ब्रैकेट में एग्जीक्यूशन के बाद सिर्फ 0 एक ऐसी चीज़ है जिसको वो फॉल्स कंसीडर करता है। 0 के अलावा कुछ भी है, नॉन ज़ीरो, एनी वैल्यू दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू, any character, any integer, any floating point value, anything other than 0, 0 के अलावा अगर कुछ भी इस ब्रैकेट्स के दरमियान में होगा, कोई भी एक्सप्रेशन, चाहे वो -1 बन रहा हो, 3 - 4 हो, 20 + 30 हो, तो वो सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या कंसीडर होंगे, ट्रू कंसीडर होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमें अपनी लॉजिक्स बहुत सोच समझ के लिखनी पड़ती हैं, स्पेशली इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली पुट सम फार्मूला इन इट। अगर आपके पास ये लॉजिकल ऑपरेशंस आपने अप्लाई किए हुए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, उनमें तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनका आंसर या ट्रू आएगा या फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर आप एक फार्मूला इसके अंदर लिख रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस एग्जीक्यूशन की बेस पे आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी है कि अगर एग्जीक्यूशन का आंसर 0 आएगा, ओनली इन दैट केस द कंडीशन इज़ कंसिडर्ड एज फॉल्स।
अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू या एग्जीक्यूट होती है, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट होती है और यहाँ पे आपका फाइनल जो रिज़ल्ट बनता है इस इन ब्रैकेट्स के दरमियान वो अदर देन ज़ीरो है, देन इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर एज देयर ट्रू स्टेटमेंट. इन इफ एल्स इंस्ट्रक्शन यू कैन सिंपली रिलेट इट विद द एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टूडेंट का ग्रेड चेक करना है कि आपके पास हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया है 60 मार्क्स. हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट के 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो इसका मतलब है कि वो पास है, और अगर 60 से ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं तो हमने उस केस में कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ 60 पासिंग चेक करनी है कि स्टूडेंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा. इन सूडो कोड अगर हम बात करें या इन जनरल वर्डिंग्स बात करें तो हमारे पास कंडीशन क्या है, ए स्टूडेंट ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 प्रिंट पास. कि अगर उसका जो भी ग्रेड है, जो भी उसके मार्क्स हैं वो ग्रेटर या इक्वल टू 60 हैं तो उस केस में हमने क्या कर देना है, पास प्रिंट कर देना है. सो हम अपने पास इस पूरी चीज़ को एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे कि हम इफ़ कंडीशन के अंदर ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि जिससे ये चीज़ वेरीफाई हो सके. जब ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपकी स्टेटमेंट्स रन हो जाएंगी, और अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये प्रिंट पास्ट प्रिंट करने वाली जो लाइन है इसको स्किप कर देगा और स्किप करके कहाँ मूव कर जाएगा, टुवर्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और द नेक्स्ट लाइन. आप अपने इफ इंस्ट्रक्शन का फ्लो चार्ट किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ यूजिंग दी डायमंड. ये हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स में पहले भी बात की थी कि डिसीजन मेकिंग किसके थ्रू की जाती है, थ्रू डायमंड की जाती है. डायमंड के अंदर आप सिंपली वो एक्सप्रेशन या वो कंडीशन लिखते हैं, इफ़ का वर्ड दोबारा नहीं लिखा जाता, सिर्फ कंडीशन लिखते हैं. जो चीज़ डायमंड में है ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि वो किसी इफ़ के अंदर लिखी जाएगी, किसी स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट के अंदर लिखी जाएगी जहाँ उसको टेस्ट किया जा रहा है. तो आपके इफ़ के अंदर, इफ़ की जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कंडीशन है वो आपके डायमंड में लिखी जाएगी. अब आपके इस डायमंड के रिस्पेक्टिव दो कंडीशंस हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन फॉल्स होगी. सो इससे दो एरोज़ निकल रहे हैं. बाकी जब सारे इंस्ट्रक्शन से जैसे एक एक एरो निकल रहा होता है तो हमारे पास इस डायमंड से दो एरोज़ आउट हो रहे हैं, दैट इज़ फॉल्स एंड ट्रू. अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है तो आपके पास कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये एक पर्टिकुलर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. कंडीशन ट्रू थी, इफ़ योर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 60, ट्रू हो गया तो आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ गया, पास, और उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया. लेट्स सपोज कंडीशन फॉल्स हो गई है, जो यूज़र ने मार्क्स एंटर किए वो ग्रेटर देन 60 नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई तो वो ये बॉडी, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको स्किप कर देगा, और स्किप करके डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, आफ्टर दिस बॉडी और आफ्टर दिस ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो आपके पास इस ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बाद वो यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा. कुछ स्टूडेंट ये ड्रॉ करते हुए ये गलती करते हैं कि वो यहाँ से भी एग्जिट कर देते हैं और फॉल्स को नीचे अलग ले जाके फॉल्स का अलग से एग्जिट बना देते हैं. दैट इज़ इनकरेक्ट मेथड. फॉर एवरी फ्लो चार्ट देयर शुड बी वन स्टार्ट एंड वन एग्जिट. फाइनली एक एग्जिट होना चाहिए, आपको उसी के ऊपर उसको शिफ्ट करके लाना है. लेट्स कंसीडर सम एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि इफ़ इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करती हैं. दिस इज़ योर सिंपलेस्ट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में हम दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, x एंड y. x को हमने डिफ़ाइन कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 15. वी डिक्लेयर टू वेरिएबल्स, देन वी डिफ़ाइन दीज वेरिएबल्स. x इज़ इक्वल टू 15 एंड y इज़ इक्वल टू 13. दोनों को हमने एक एक वैल्यू दे दी है. अब हम चेक करना चाह रहे हैं क्या x से y से बड़ा है या नहीं है. अगर x y से बड़ा है तो हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं येस x इज़ ग्रेटर देन y, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं करना चाह रहे. सो हम लोगों ने क्या लिखा, इफ़ इज़ योर कीवर्ड, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स में आप क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन y. दिस इज़ योर कंडीशन. x की वैल्यू क्या है 15, y की वैल्यू क्या है 13. 15 इज़ ग्रेटर देन 13. आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ट्रू. जब ट्रू आंसर होगा तो इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू बन चुकी है तो वो इसके अंदर आ जाएगा. अंदर आके क्या एग्जीक्यूट कर देगा, x इज़ ग्रेटर देन y. आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y. नाउ लेट्स कंसीडर इट अपोजिट. मैं कर देती हूँ x इज़ लेस देन y. इस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 13. इफ़ x इज़ लेस देन y, अगर 15 इज़ लेस देन 13, कंडीशन क्या हो गई, येस फॉल्स. जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब इफ़ का पूरा ब्लॉक, इफ़ की स्मॉल ब्रैकेट से शुरू होके उसकी लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट तक, ये सारी लाइंस आपका प्रोग्राम स्किप कर देगा, आपका कंपाइलर स्किप कर देगा
और आपका इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके बजाय कहाँ आ जाएगा, डायरेक्टली रिटर्न 0 पे, और आपका प्रोग्राम क्लोज कर देगा और आपके स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी। Let's take another example. Second example is, in this program we are taking a number from the user and we want to check that this number is greater than 100 or not. कि हम यूज़र से एक नंबर ले रहे हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर 100 से ज़्यादा है या नहीं है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, we declared a variable x, we want to take input from the user, so हमने कहा यूज़र से कहा प्लीज़ एंटर an integer value, देन सी इन एक्स, हमने यूज़र वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू सी इन करवा ली, अपने जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था उसके अंदर वैल्यू सी इन करवा ली। अब हमने इस वैल्यू को चेक करना है क्योंकि यूज़र की तो मर्ज़ी है, वो कुछ भी प्रेस कर सकता है, वो 20 लिख सकता है, वो 1000 लिख सकता है, वो -30 लिख सकता है, एनी वैल्यू कैन बी सेव इन दिस इंटीजर। ऑब्वियसली अ नंबर, अगर वो ABC लिखेगा तो उसका भी वो कोई कन्वर्जन नंबर की फॉर्म में आपके इस एक्स वेरिएबल में सेव हो रही होगी। अब हमने जो भी वैल्यू इस एक्स वेरिएबल के अंदर सेव हुई है उसको चेक करना है। सो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 100, तो हमने इसको चेक किया कि अगर x की वैल्यू 100 से ज़्यादा है देन सी आउट द नंबर यू एंटर्ड इज़ ग्रेटर देन 100। तो हमने स्क्रीन पे शो करवा दिया द नंबर यू एंटर्ड इज़ ग्रेटर देन 100 और हमने उसके रिस्पेक्टिव, सो विद रिस्पेक्ट टू सम कंडीशन वी एग्जीक्यूटेड एन इंस्ट्रक्शन and if this condition is not going to be true then we are going to skip these instructions, these lines, and moving to the others. Okay, we can link this code with the concept of one statement and with the block of statement कि आपकी if की instruction के साथ एक statement link है या फिर ज़्यादा instruction एक पूरा block link है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास इस कंडीशन के रिस्पेक्टिव क्या कितनी इंस्ट्रक्शंस लिंक हैं, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिंक है। तो आप इसको रीराइट कर सकते हैं और अपनी इन इफ़ की ब्रैकेट्स को स्किप कर सकते हैं। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि आपने कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं लिखी, कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लिखी, तो ऑटोमेटिकली आपके कंपाइलर इस इंस्ट्रक्शन को लिंक कर देगा आपकी इस इफ़ स्टेटमेंट के साथ। लेकिन अगर आप इस इंस्ट्रक्शन के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप कोई सी आउट मेंशन कर देते हैं, let me try it with using the same statement like this कि मैंने एक और इंस्ट्रक्शन इसके अंदर ऐड कर दी है और and printed a message for example goodbye। अब आपके पास क्योंकि कोई इफ़ के बाद करली ब्रैकेट्स नहीं अप्लाई हुई हुई तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर कितनी इंस्ट्रक्शंस को लिंक करेगा इफ़ के साथ, ऑब्वियसली ओनली वन इंस्ट्रक्शन। सिर्फ पहली लाइन जो है वो इस कंडीशन के साथ लिंक है, दूसरी लाइन का इस इफ़ कंडीशन के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई इसके साथ एसोसिएशन नहीं है। तो अब इफ़ की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, सेकंड इंस्ट्रक्शन से इसका कोई लिंक नहीं है, इसका मतलब है सेकंड इंस्ट्रक्शन ने हर सूरत में एग्जीक्यूट होना है। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन तो रन होनी ही होनी है, सिर्फ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी सी आउट की है वो इस इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी और अगर ट्रू नहीं होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर किया है दैट इज़ 1000, तो 1000 के केस में आपके ख्याल में आउटपुट क्या आएगी? 1000 इज़ ग्रेटर देन 100, कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ नज़र आया? द नंबर यू एंटर्ड इज़ ग्रेटर देन 100। देन उसके बाद आपका कंपाइलर कहाँ मूव करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? गुड बाय, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा गुड बाय। इफ़ योर वैल्यू इज़ लेस देन 100, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एंटर किया था 50 इज़ ग्रेटर देन 100, नो, कंडीशन इज़ फॉल्स। तो ये आपके फॉल्स होने की वजह से जो इफ़ के साथ एसोसिएटेड लाइन थी, मींस फर्स्ट सी आउट इंस्ट्रक्शन, वो स्किप हो जाएगी और कंपाइलर आपका डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? सेकंड इंस्ट्रक्शन पे, दैट इज़ सी आउट गुड बाय। तो आपकी स्क्रीन पे सिर्फ क्या लिखा हुआ आएगा? गुड बाय। तो आपकी ये गुड बाय वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये दोनों केसेस में एग्जीक्यूट हो रही है क्योंकि इसका इफ़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये इफ़ से लिंक्ड ही नहीं है, ये इफ़ से एसोसिएटेड ही नहीं है, तो ये तो होनी ही होनी है हर सूरत एग्जीक्यूट। सिर्फ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट जो सी आउट की इंस्ट्रक्शन है उस वो डिपेंडेंट है किस पर? इस इफ़ की कंडीशन के ऊपर। बेसिक आइडिया समझ आ गया, दैट इज़ ऑफ इफ़ इंस्ट्रक्शन। इफ़ इंस्ट्रक्शन का हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि इफ़ इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, उसके अंदर एक्सप्रेशन कैसे चेक होता है, कंडीशन कैसे चेक होती है और किस तरीके से हम एक इंस्ट्रक्शन या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को उस इफ़ कंडीशन के साथ लिंक कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि जब आपके पास कंडीशन ज़्यादा हैं, आपने सिर्फ कोई एक कंडीशन नहीं चेक करनी बल्कि आपने मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। टेकिंग द सेम एग्जांपल जो हम पहले से शुरू से ले रहे हैं, दैट इज़ ऑफ एडमिशन्स। लेट्स सपोज आपका एडमिशन का क्राइटेरिया सिर्फ आपके एफएससी के मार्क्स नहीं है कि आपके एफएससी के मार्क्स 60% से ज़्यादा होने चाहिए,
प्लस आपके साथ इसमें क्राइटेरिया ऐड हो गया है कि आपके पास आपके टेस्ट के मार्क्स भी 50% से ज़्यादा होने चाहिए और डिवाइस वर्सा। सो आपके पास दो कंडीशंस हैं, आपने दो कंडीशंस अप्लाई करनी हैं और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो उसके बाद ही आपने एक फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन, कोई एक स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का तो सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को हमने इफ़ के साथ लिंक करना होगा तो हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और अगर हम लोगों के पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को लिंक करना होगा तो हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम अब मल्टीपल इफ़ इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे? अगर दोनों इन कंडीशंस का आपस में लिंक्ड हैं, दोनों कंडीशंस का एक साथ ट्रू होना ज़रूरी है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है आप उस इफ़ कंडीशन के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर दोबारा से इफ़ अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज आपने एक इफ़ इंस्ट्रक्शन लिखी, एक कंडीशन अप्लाई की, इफ़ दिस कंडीशन इज़ गोइंग टू बी ट्रू, देन उस केस में वो क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अंदर आके हमने देन सेकंड कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई कर दी, और अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू हुई तब वो सेकंड ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और फिर वो एक पर्टिकुलर आपके पास स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट कर देगा या फिर रन कर देगा। तो इस तरीके से आपकी दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तभी वो इस लिंक स्टेटमेंट तक पहुंचेगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली वो इसको स्किप कर देगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप कर देगा, अंदर कोई और कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। अगर आपके पास लेट सपोज फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो अंदर आएगा, सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो इनर ब्लॉक को स्किप करेगा और उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएगा और आपकी इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। So when you have if instruction within another if instruction, then it is called nested if instruction. Nested if का क्या मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर दूसरी इंस्ट्रक्शन होना। प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ आप याद रख लें कि जहाँ पे भी नेस्टेड का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के बॉडी में एग्जिस्ट करती है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि वो नेस्टेड है, उसके उस लाइक अ नेस्ट वो उसके डिफरेंट लेयर्स में है। सो अगर एक कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन की बॉडी के अंदर एक और एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास नेस्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं। ये दोनों क्योंकि इफ़ इंस्ट्रक्शन है तो ये नेस्टेड इफ़ इंस्ट्रक्शंस हैं। So this is your if instruction when you want to apply multiple conditions and you want all condition needed to be true to execute a particular statement, then you will use nested if instruction. Nested if instruction जहाँ हम लोग nested if instruction में एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द सिंगल इंस्ट्रक्शन एज वेल। आप इस तरीके से कोड करें, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसकी बजाय आप दो इफ़ लगाएं, आप उसकी जगह एक इफ़ की कंडीशन अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप एक इफ़ की स्टेटमेंट अप्लाई करें और उसके अंदर दोनों कंडीशंस को अप्लाई करें और उन दोनों इफ़ कंडीशंस को आपस में लिंक कर दें यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड का लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करने से बिल्कुल वही रिज़ल्ट आएगा जो आपका नेस्टेड इफ़ का रिज़ल्ट आ रहा है। नेस्टेड इफ़ में भी क्या होता है कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तब वो स्टेटमेंट तक पहुंचता है और एग्जीक्यूट करता है। एंड के केस में भी क्या होगा कि पहली कंडीशन ट्रू हो एंड सेकंड कंडीशन, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई भी एक कंडीशन इनमें से फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली वो इस लाइन को स्किप कर देगा और बाहर मूव कर जाएगा। कंडीशन समटाइम कम्प्लेक्स होती हैं तो हमें उन्हें लिखने में इस तरीके से आसानी होती है। समटाइम कंडीशंस आपके पास बहुत बड़ी होती हैं तो भी हम इस रिस्पेक्टिव इफ़ के अंदर इफ़ लिखना पसंद कर रहे होते हैं, और समटाइम आपके पास सारी मैथमेटिकल कंडीशंस होती हैं तो मैथमेटिकल कंडीशंस को ईजीली हम इन लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के थ्रू लिख सकते हैं। सो देयर इज़ नो प्रेफरेंस, कोई प्रेफरेंस नहीं है कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दोनों का रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप ये कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं कि आप इफ़ के अंदर इफ़ लिख के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी इफ़ की स्टेटमेंट्स को कम करते हुए लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई कर रहे हैं और दो कंडीशंस को इकट्ठे मर्ज कर रहे हैं। लाइक नेस्टेड इफ़ इंस्ट्रक्शंस की तरह आपके पास आपके प्रोग्राम में मल्टीपल इफ़ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। आपके एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर हो सकता है बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं और उन कंडीशंस का ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ कोई लिंक हो, कोई एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशनशिप बन रहा हो। सारी इंडिपेंडेंट इफ़ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं।
आपके एक ही प्रोग्राम के अंदर एक इफ़ की इंस्ट्रक्शन हो सकती है, उसके रिस्पेक्टिव आपने जो काम करवाना है वो हो सकता है, उसके बाद फर्दर कोई और कंडीशन हो सकती है और उस कंडीशन के रिस्पेक्टिव आप कोई और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रन कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को ओपन रखना है, किसी भी इफ़ के साथ लिंक नहीं करना, तो वो आप उसके बाद या उससे पहले लिख सकते हैं। सो आपके प्रोग्राम में मल्टीपल इफ़ इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल इफ़ इंस्ट्रक्शंस, लेट्स सपोज आपके पास मल्टीपल इफ़ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन उन मल्टीपल कंडीशंस के केस में अपने सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। आपने एक कंडीशन अप्लाई करनी है, अगर वो ट्रू है तो उस केस में भी आपने एक पर्टिकुलर काम करना है। आपके पास एक और कंडीशन है और उस केस में भी आपने वही सेम काम ही दोबारा करना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट हो गया है तो आप इस सिनेरियो को शॉर्ट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। किस तरह से? यूजिंग ओनली अ सिंगल इफ़, कि आप सिर्फ एक सिंगल इफ़ यूज़ कर लें और आप इसके अंदर दोबारा जिस तरीके से हमने पहले नेस्टेड इफ़ के लिए क्या यूज़ किया था, एंड ऑपरेटर, यहाँ पे हमें कौन हेल्प करेगा? दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर और का लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे हमें हेल्प कर सकता है। अगर हम एक इफ़ की स्टेटमेंट अप्लाई कर लें और उसी के अंदर ही दोनों कंडीशंस लिख लें और उनके दरमियान और लगा लें। एज़ वी नो फॉर द लॉजिकल ऑपरेटर और आपके पास कब ट्रू होता है? व्हेन एट लीस्ट एनी सिंगल स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम भी चेक करें, सेकंड टाइम भी चेक करें, एक ही स्टेटमेंट्स को 2 बार एग्जीक्यूट करें, वो भी गलत हो जाएगा। सो आपके पास ज़्यादा बेटर अप्रोच क्या हो जाएगी कि आप एक सिंगल इफ्स की स्टेटमेंट यूज़ करें और उसी के अंदर दोनों कंडीशंस अप्लाई कर दें और उनको आपस में किस तरीके से कंबाइन करें। उनको आपस में कंबाइन करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर और यूज़ कर लें। तो और का लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने से फ़ायदा क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हुई या फिर दोनों भी अगर कंडीशंस ट्रू हुई तो आपके पास ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। So this can be your also an alternate solution for multiple if instructions. Okay, now let's start the if else selection structure. आपके पास शायद आपने भी नोट किया हो कि हम इसी एग्जांपल को मैं लेते हुए आगे मूव करती हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट शुरू में एग्जीक्यूट की थी इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल दिस वन। इन दिस एग्जांपल हमने क्या चेक किया था कि अगर x की वैल्यू y से लेस है तो हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करवाई थी और अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाती है तो उस केस में आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। स्क्रीन सिंपली ब्लैंक रहेगी, स्क्रीन ओपन ही नहीं होगी, ओपन होकर क्लोज हो जाएगी, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। बीइंग यूज़र मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगी कि मैंने एक चीज़ रन की है और मुझे स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आया है। अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई है, आई वांट टू सी सम मैसेज, मुझे कोई मैसेज नज़र आना चाहिए, मुझे कोई अल्टरनेट नज़र आना चाहिए। जैसे आपके पास हम एग्जांपल ले रहे हैं कि स्टूडेंट पास है या फिर फेल है, तो अगर स्टूडेंट पास है तो उसे पास लिखा हुआ आ रहा है, दैट्स ओके। लेकिन अगर वो पास नहीं है तो भी आपकी स्क्रीन ब्लैंक तो नहीं रहनी चाहिए, आपकी स्क्रीन पे एटलीस्ट कुछ लिखा हुआ आना चाहिए कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है? दैट इज़ इफ़ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इफ़ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर में आपके पास अब 2 वेज प्रोवाइडेड हैं कि जिसके थ्रू आप 2 डिफरेंट ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक ब्लॉक वो होगा जो एक ही कंडीशन के ऊपर अब आप 2 ब्लॉक्स को इससे लिंक कर रहे हैं। एक ही कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन आगे प्रोग्राम मूव ऑन कर जाएगा। सो यू आर सिंपली फॉर द सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल इंस्ट्रक्शन, यू हैव 2 चॉइसेस। आपके पास 2 चॉइसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट्स कि कौन सी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन अगर ट्रू है तो कौन सी को एग्जीक्यूट करना है और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो फिर किन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। ये हम करेंगे कैसे कि इन प्रोग्रामिंग आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा, यू कैन राइट इफ़, बिल्कुल पहले की तरह। इफ़ के बाद अगेन इफ़ ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी इन द स्मॉल, क्योंकि ये कीवर्ड है। इफ़ के बाद स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे? कोई भी अपना एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन। उस एक्सप्रेशन कंडीशन के साथ जो भी उसके ट्रू के केस में जो भी एसोसिएट करना है वो उसके फ़ौरन बाद आ जाएगा कि अगर ये एक्सप्रेशन या ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी हमने काम करवाना है वो उसके फ़ौरन बाद जो ब्लॉक अवेलेबल है वो हम उसके अंदर मेंशन कर देंगे। देन हम उसकी बात करेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है और उस केस में हमने कुछ प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिखेंगे? एल्स, कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कहाँ चला जाए? ये एल्स पे चला जाए और एल्स के ब्लॉक में जो भी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दे। यहाँ पे भी आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए सेम मेथड अप्लाई होता है कि अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है
तो आपको ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको ब्रैकेट की ज़रूरत है, जिसको हम बाय द एंड ऑफ द लेक्चर अगेन थोड़ा सा डिटेल में रिवाइज़ कर लेंगे। So this is your simple in general form of your if else instruction. If expression, if this expression is not going to be true, अगर ये condition false हो जाती है तो आपका कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका कंट्रोल एल्स पे चला जाएगा और एल्स के ब्लॉक के अंदर एल्स के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं वो उनको एग्जीक्यूट करेगा और ये सारा स्किप कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई है तो वो सिर्फ इनको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स का सारा पार्ट स्किप कर देगा। सो आइदर इज़ गोइंग टू बी दिस block, either it is going to be statement block 1 और statement block 2. there is no possibility कि वो block 1 को भी execute करे और 2 को भी execute करे, क्योंकि expression क्या हो सकता है, either can be true or either can be false. if true then block 1, if false then block 2 only. let's consider this example. हम इस example को ले लेते हैं. we had two numbers, x is 15, y is 13. we applied a condition क्या x से बड़ा है. if x is greater than y then we have displayed on the screen that x is greater than y. और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में हमने क्या करना है, हमारा कंट्रोल एल्स पे शिफ्ट कर जाएगा और एल्स में शिफ्ट करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट y इज़ ग्रेटर देन x, कि आपके पास सेकंड वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो चुकी है बजाय इसके कि आपकी x की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो. सो दिस इज़ योर राइटिंग स्टाइल ऑफ योर इफ एल्स इंस्ट्रक्शन. इफ़ की स्टेटमेंट, उसके रिस्पेक्टिव ब्लॉक, देन एल्स की स्टेटमेंट एंड एल्स की इंस्ट्रक्शंस. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज़ दैट देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग एनी कंडीशन इन एल्स पार्ट. एल्स पार्ट का सिर्फ मतलब है कि ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो एल्स हो रहा है, ठीक है, वो नहीं हुआ तो इसलिए एल्स पे आ रहा है. एल्स की अपनी कभी कोई कंडीशन नहीं होती. एल्स के केस में अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एक और कंडीशन चेक करो, तो वो हम इसके अंदर दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, राइट. इफ़ वन कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पार्ट. इफ़ दिस कंडीशन इज़ गोइंग टू फॉल्स देन अप्लाई अनदर कंडीशन. तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम डिफरेंट नेस्टेड इफ एल्स में जाएंगे कि आपके पास अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो एल्स में आया, एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं है, अगर एल्स में आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो वो एल्स की बॉडी के अंदर अप्लाई होगी. एल्स के बाद कभी भी ब्रैकेट्स लगा के और उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती. ओके, सो दिस इज़ योर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये फुल ब्लॉक इज़ योर इफ एल्स इंस्ट्रक्शन. इफ़ का एक्सप्रेशन, देन एल्स का एक्सप्रेशन. आप चाहें तो एक एक्सप्रेशन के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर फर्दर एक पूरा इफ एल्स लिख सकते हैं. जैसे आपने एक कंडीशन चेक की, एक कंडीशन चेक होने के बाद आपने फिर कोई और कंडीशन चेक करनी है और सिर्फ सेकंड कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ और काम करवाना है. फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू थी लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई है तो उस केस में आपने कोई और काम करवाना है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक 2. फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू, सेकंड इज़ ट्रू, स्टेटमेंट ब्लॉक 1. फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स, तो वो सेकंड के एल्स पे आएगा और क्या एग्जीक्यूट कर देगा, सेकंड का ब्लॉक. इफ़ फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गई है देन इट विल गोइंग टू स्किप फुल ब्लॉक ऑफ योर इफ़. तो इफ़ का पूरा ब्लॉक स्किप करेगा और आपका कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके एल्स के पार्ट के ऊपर. एंड एल्स के पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक 3 है, जो भी आपके पास ये ब्लॉक पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा. दिस होल कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड योर नेस्टेड इफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट. तो आपका नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब है कि आपकी इफ़ के अंदर फर्दर इफ एल्स लगा हुआ है, इफ़ के एल्स के अंदर दोबारा इफ एल्स लगा हुआ है. तो जब आपकी इफ़ एल्स के अंदर दोबारा फर्दर आप इफ एल्स अप्लाई किया हुआ है अगर आपने, तो उसको कहा जाएगा कि वो एक नेस्टेड इफ एल्स सिलेक्शन है. दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम कि आपसे रिक्वायर क्या किया गया है, आपसे क्या पूछा गया है, क्या चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसके रिस्पेक्टिव अपने इन सारे एक्सप्रेशंस को राइट अप करेंगे, अरेंज करेंगे. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल को लेते हैं और हम देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से एफिशिएंटली यूजिंग इफ एल्स सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर आवर ग्रेडिंग प्लान वी हैव सम रेंजेस और उन रेंजेस ऑफ मार्क्स और उन मार्क्स के रेंजेस के रिस्पेक्टिव हमने कोई एक ग्रेड प्रिंट करवाना है स्टूडेंट्स के लिए.
So if student grade is or the marks is greater than or equal to 90, then it will print A. If its grade is greater than or equal to 80, then it's B. If it's greater than or equal to 70, then it's C. If it is greater than or equal to 60, then it is D. Otherwise it is fail or the F grade. To implement this, the logic for this simple program, we can apply different logics or different techniques of if-else to solve it. For example, I can apply different if, one if for A grade, one if for B grade, one if for C grade, one if for D grade, and then finally one if for an F grade. For example, if it is less than 60 or so it is considered as the F grade or the fail grade. But the problem is that if I am going to apply only the if instruction, all if instruction for each of the grade, then if student is going to enter any marks, for example, the student entered 60 marks, right? So he is passed, right? He needed to be print only D grade. सिर्फ डी ग्रेड प्रिंट करवाने के लिए भी इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इफ़ स्टेटमेंट. वो फर्स्ट इफ़ को चेक करेगा, नहीं एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरा इफ़ चेक करेगा, नहीं एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा इफ़ चेक करेगा, नहीं एग्जीक्यूट करेगा, चौथा इफ़ चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके बाद पांचवा भी चेक करेगा और एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो अगर हम इफ़ के साथ एल्स नहीं लगाते तो वो उससे हमारे पास नुकसान क्या होगा कि हमारे पास कोई भी मार्क्स हैं वो हर मार्क्स के लिए सारी कंडीशंस को बार बार चेक करेगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के 92 मार्क्स हैं, तो 92 के केस में क्या है, उसने चेक किया, उसे पता चल गया कि उसका ए ग्रेड है, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया ए. अगर एल्स नहीं होगा, सारे के सारे इफ़ की स्टेटमेंट्स होंगी, तो प्रिंट करवाने के बावजूद वो सारी कंडीशंस को दोबारा चेक कर रहा होगा और आपका सिस्टम बिला वजह की एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, आपका प्रोग्राम ऐसी एग्जीक्यूशन कर रहा होगा जो रिक्वायर्ड नहीं है. सो इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एल्स इन बिटवीन मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स. हर एक की डिफरेंट इफ़ स्टेटमेंट है, हर एक के रिस्पेक्टिव में काम भी डिफरेंट करवाना है, डिफरेंट चीज़ प्रिंट करवानी है. लेकिन हमें ये पता है कि अगर फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाए तो बाकी एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास सेकंड एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद की एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड सो ऑन. इसको आप इस एग्जांपल को रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू सर्च समथिंग, आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं अपने पास, और वो आपके पास कैसी सर्विस पे है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेयर्स. आपके पास स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के ऊपर आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं. अगर आपको फर्स्ट स्टेयर के ऊपर ही मिल जाता है तो आपको बाकी स्टेयर्स चढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको सेकंड स्टेयर पे मिलता है तो उसके बाद के जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपकी जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो फाइनली ऊपर, सबसे ऊपर वाली स्टेयर के ऊपर मौजूद है, तो ज़ाहिर है आपको सारी स्टेयर चढ़ के जाना पड़ेगा और ऊपर आपको फिर वो चीज़ मिलेगी. लेकिन अगर वो फर्स्ट पे है तो बाकियों की ज़रूरत नहीं, सेकंड पे है तो उससे आगे ज़रूरत नहीं, थर्ड पे है तो उससे आगे ज़रूरत नहीं है. इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ इफ़ एल्स, जिसको एल्स इफ़ लेडर भी कहा जाता है. इसको एल्स इफ़ लेडर कहने की रीज़न क्या है, बिकॉज ये एल्स, इसको आगे एल्स के अंदर हम डिफरेंट इफ़ अप्लाई कर रहे हैं. आपका प्रोग्राम नेस्टेड हो रहा है, नेस्टेड इफ़ एल्स है, लेकिन नेस्टेड इफ़ एल्स में इफ़ के अंदर इफ़ के ट्रू होने के केस में फर्दर कंडीशंस नहीं हैं, बल्कि इफ़ के फॉल्स होने के केस में फर्दर कंडीशंस हैं. फिर सेकंड इफ़ के फॉल्स होने के केस में फर्दर कंडीशन है. फिर थर्ड इफ़ के फॉल्स होने के केस में फर्दर कंडीशन है. फिर फोर्थ इफ़ के फॉल्स होने के केस में फर्दर कंडीशन है. तो जब आपके पास कंडीशन डिपेंडेंट कंडीशन आगे प्रोलॉन्ग कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू दी इनकरेक्ट लॉजिक, तो उसके लिए फिर आप एल्स इफ लेटर को यूज़ करते हैं. आपका कोई भी प्रोग्राम कहीं पे भी कभी भी एल्स से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखी जा सकती. सो इट कैन नॉट बी स्टार्टेड लाइक कि आप एल्स लिखो और एल्स से प्रोग्राम शुरू करो और उसके बाद फिर इफ़ लिखना शुरू कर दो. हमेशा ये किसी पहले एक इफ़ से स्टार्ट होगा, उसके साथ जो एल्स एसोसिएटेड होगा, देन उसके थ्रू आप आगे फर्दर प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. सो इफ़ योर कंडीशंस आर प्रोलॉन्गिंग और इट इज़ एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दी इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसके लिए हमारे पास बेटर अप्रोच क्या होती है, एल्स इफ़ लेटर, कि हम इफ़ एल्स के आगे एल्स के पार्ट में डिफरेंट इफ़ डालते जाएं. इफ़ के अंदर कुछ नहीं है, इफ़ के साथ जो एल्स है उसके अंदर फिर इफ़ है, फिर उसके एल्स के अंदर फिर इफ़ है, फिर उसके एल्स के अंदर फिर इफ़ है, एंड सो ऑन. तो इसको हम प्रोग्राम किस तरह से करेंगे, हम कोड किस तरह से करेंगे, सो इसको हम इस तरीके से कोड कर देंगे. इफ़ फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट, एल्स अगर ट्रू नहीं होती तो फिर दूसरी कंडीशन को वो चेक करे. दूसरी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट, अगर ट्रू नहीं होती दूसरी कंडीशन तो फिर ये थर्ड एल्स पे आएगा.
देन थर्ड कंडीशन ट्रू हो जाए तो सी ग्रेड, और अगर थर्ड कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो उससे नेक्स्ट एल्स को कंसिडर करेगा और उसके अंदर फिर वो एक और कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डी प्रिंट हो जाएगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो फिर फर्दर इस एल्स से कनेक्ट करेगा और फाइनल ग्रेड को प्रिंट कर देगा। सो इन दिस सिनेरियो आपके पास एल्स के अंदर फर्दर इफ़ अप्लाई हो रहे हैं, सो हम इसको एल्स इफ़ सिलेक्शन भी कहते हैं। सो दिस वॉज मोर और लेस एवरीथिंग वी कवर्ड फॉर द इफ़ एल्स इंस्ट्रक्शंस के किस तरीके से सिंपल इफ़ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इफ़्स को इकट्ठे यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके से हम नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हैं, हम नेस्टेड इफ़ को एंड ऑपरेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम मल्टीपल इफ़्स के केस में अगर हमने सेम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवानी हो तो हम और का लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस एट अ टाइम। एंड देन वी कवर्ड इफ़ एल्स के बाद देन नेस्टेड इफ़ एल्स आपके पास कब होता है कि जब आपके इफ़ के पार्ट के अंदर, इफ़ की बॉडी के अंदर इफ़ के ट्रू होने के केस में फर्दर इफ़ एल्स कोई उसके अंदर अप्लाई हुआ हो तो वो आपके पास नेस्टेड इफ़ एल्स होगा। सिमिलरली देन वी टॉक अबाउट एल्स इफ लेटर क्या है कि अगर एल्स के केस में अगर आपने फर्दर फिर कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो और उसके अंदर भी फिर एल्स के ही केस में सारे आप एल्स के केसेस में अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हो अपनी लॉजिक को, तो उसके लिए हम एल्स इफ लेटर को यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स और एल्स इफ़ को यूज़ करते हुए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी इफ़ के साथ हमेशा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड होती है। अगर आप इफ़ के साथ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एसोसिएट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? यस एग्जैक्टली कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स को नहीं यूज़ कर रहे, आपने कर्ली ब्रैकेट्स को भी यूज़ नहीं करना और आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को भी हैंडल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। केयरफुल किस सेंस में रहना पड़ता है कि आप इस एग्जाम्पल को अपने सामने ले लें। फॉर एग्जाम्पल दिस कोड, आपके पास फर्स्ट इफ़ की कंडीशन है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, आपके पास कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन के साथ आगे कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है। अब कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इस इफ़ के साथ क्या कौन एसोसिएटेड है? सिर्फ नेक्स्ट इफ़ की स्टेटमेंट। इसके साथ ये नेक्स्ट इफ़ की स्टेटमेंट एसोसिएटेड है, ओके फाइन। ये नेक्स्ट अगर इफ़ की स्टेटमेंट है y इज़ ग्रेटर देन 5, अगर y भी ग्रेटर देन 5 है तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना है? सी आउट x एंड y आर ग्रेटर देन 5। उसके बाद हमने क्या लिखा? एल्स। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये एल्स किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एल्स इफ़ इसके साथ एसोसिएटेड है या फिर ये आउटर इफ़ के साथ एसोसिएटेड है? द आंसर इज़ कि ये इनर इफ़ के साथ एसोसिएटेड है। आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली, चाहे ये पीछे मैंने इसको इसके साथ अलाइन किया हुआ है, इसकी सेम लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपका कंपाइलर इसको कैसे हैंडल करता है कि वो हमेशा हर एल्स को सबसे पहले जो उसको करीब तरीन इफ़ मिलेगा वो उसके साथ एसोसिएट करेगा। मीन्स ये एल्स किसके साथ एसोसिएटेड है? इनर इफ़ के साथ एसोसिएटेड है, ये ऊपर वाले इफ़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज वी कैन कंसिडर इज़ कि ये एल्स आपका इस इफ़ के साथ एसोसिएटेड है, अपर इफ़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन उस केस में वो एल्स के ऊपर आएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब आप इस तरह का कोड लिख रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर अप्रोच क्या हो सकती है? फर्स्ट अप्रोच क्या ब्रैकेट्स यूज़ करें। आपको कन्फ्यूजन है किस इफ़ के अंदर कितना पार्ट है, कितनी लाइनें हैं, कौन कौन सा इफ़ एल्स इसके अंदर है, वो सारा का सारा आप उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखें। अगर आप कर्ली ब्रैकेट से फिर भी बचना चाह रहे हैं, आपके प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कर्ली ब्रैकेट्स हो गई हैं, तो फिर जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है दैट इज़ इंडेंट योर कोड। इंडेंट का क्या मतलब होता है? दिस अलाइनमेंट, जो आपके कोड की अलाइनमेंट होती है उसको इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन आपके कोड को बहुत ज़्यादा सिंपल बना देती है, एरर रिमूव करने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाती है, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे फर्स्ट लुक में क्या पता चलता है कि ये एल्स किसके साथ है? आउटर के साथ, हालांकि ये नहीं था। अगर आप इसे टैब करके आगे लिखेंगे तो आपका फ़ौरन आपका माइंड में क्लिक कर जाएगा कि नहीं, ये इनर के साथ एसोसिएटेड है। सो वन मेथड जो मुझे इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू होते हैं प्रोग्रामिंग में, उनके लिए जो ज़्यादा बेटर अप्रोच लगती है दैट इज़ ब्रैकेट। ऑन अ सेफ साइड ब्रैकेट्स आपको बहुत ज़्यादा इंश्योर कर देती हैं कि कंफर्म ये वाला पार्ट इस इफ़ के अंदर है, ये वाला कोड इस इफ़ एल्स के अंदर है, तो वो आपको बहुत क्लियर हो जाता है, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाती हैं। इन केस इफ़ यू डोंट वांट टू, देन द बेस्ट थिंग, अगर आप ब्रैकेट्स यूज़ भी करें तो उसके साथ प्लस पॉइंट आपको क्या ज़रूर करना चाहिए, दैट इज़ दिस टाइप ऑफ इंडेंटेशन, कि आप अपने कोड को
जो चीज़ जिसके अंदर है, तो वो अगर ये इफ़ एल्स दोनों इस इफ़ के अंदर थे तो आपको इन दोनों को थोड़ा सा आगे करके लिखना चाहिए, थोड़ा सा इंडेंट करके लिखना चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियरली किसी भी प्रोग्रामर को और आपको भी क्लियरली एक विजन मिल जाए कि ये इस इफ़ के अंदर ये दोनों इफ़ एल्स एग्जीक्यूट होंगे, ये उसके साथ एसोसिएट करेंगे। ओके, सो you can use again, let's suppose if you want to connect the else part with the first if, अगर आप चाहते हैं कि ये else का पार्ट इनर if का ना बने बल्कि आउटर if का बने, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट्स, कि if के पार्ट के अंदर if की बॉडी बनाई, if अगर ट्रू हो रहा है तो सिर्फ इसके अंदर ये एक और if चेक हो रहा है जिसका फर्दर कोई else नहीं है, लेकिन इस if का else अवेलेबल है, दैट इज़ दिस कंडीशन। सो आपने जो भी कंडीशन जिसके साथ एसोसिएट करनी है बहुत केयरफुली करनी है। दिस इज़ दैट आर्ट, दैट ट्रिक जिसकी वजह से कहा गया है कि आपकी प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग मोर देन इफ एल्स। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से हैंडल करना आती हैं, अच्छे तरीके से आप इनको समझ पा रहे हैं, इनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और डिज़ाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि यू कैन बी अ वेरी गुड प्रोग्रामर, यू कैन कंस्ट्रक्ट वेरी गुड सॉफ्टवेयर्स जिनका फ़्लो बिल्कुल ठीक होगा। सो यहाँ पे आपको बहुत समझ से, सोच समझ के एंड बहुत केयरफुली डिसीजन लेना है, और केयरफुली इनिशियली आपकी लर्निंग के लिए क्या मेथड यूज़ हो सकता है, तो वो मेथड यही है कि ट्राई टू यूज़ दीज ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स को यूज़ करें। आपके पास ये ब्रैकेट आपने यहाँ क्लोज कर दिया है, इसका मतलब एल्स इसके साथ लिंक कर गया है। ये क्लोजिंग ब्रैकेट अगर आप इसी आउट के बाद क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब है वो सारा का सारा इफ़ के अंदर चला जाएगा। सो आपको बहुत एक क्लियर विजन मिल जाता है यूजिंग दीज ब्रैकेट्स, या अपने कोड को ब्लॉक्स में बनाने से आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। सो दिस इज़ योर ब्लॉक, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लॉक, जो हम शुरू से बात करते हैं कि आपका कोई भी इफ़ की इंस्ट्रक्शन होती है तो इसकी इंस्ट्रक्शन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट करती है, सिर्फ एक लाइन एसोसिएटेड होती है। सिमिलर इज़ द केस विद द एल्स। एल्स के अंदर बाद भी अगर आप करली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो सिर्फ एक सी आउट इंस्ट्रक्शन इस एल्स का पार्ट बनेगी। अगर आप एल्स के पार्ट के अंदर ज़्यादा चीज़ें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ें एसोसिएट करना चाहते हैं विद दी विद द कंसेप्ट ऑफ बीइंग फॉल्स ऑफ दिस कंडीशन, की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो उस केस में अगर आपने ज़्यादा काम करवाना है तो आप एल्स के लिए भी क्या यूज़ करें, ब्रैकेट्स यूज़ करें। ये आपकी मर्ज़ी हो सकती है, हो भी सकता है सिर्फ इफ़ की ब्रैकेट्स हों, सिर्फ एल्स की ब्रैकेट्स हों, दोनों की ब्रैकेट्स हों, जिस तरीके से भी आपको बेटर लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। So this was all about today's lecture and a very important part or the topic of our subject. So please note down any point, any question, anything which is making you difficult to understand it, and try to practice as much as you can in your especially lab session. इफ़ एल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपकी लॉजिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक पार्ट जहाँ आपकी लॉजिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। सो लॉजिक डेवलप करने का अब पॉइंट है, लॉजिक डेवलपमेंट के स्किल्स को इम्प्रूव करने का टाइम है। तो आपने इफ़ एल्स से रिलेटेड जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं आपकी बुक में अवेलेबल हैं, आपके लैब मैनुअल में अवेलेबल हैं, आपके टीचर्स आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब को खुद से ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एंड फॉर एनी क्वेश्चन just come in the discussion session. Thank you.